I welcome Dr. D.C. Rathi, Associate Professor at Government College Rao, also Dr. Manjula Nigwal, Dr. Anita Solanki, Dr. Sapna Malviya, Dr. Sunita Sakel, and Dr. Abhilash Thakur from Bherulal Patida Government PG College Mau. Mr. Yash Chauhan and our distinguished speaker, Mr. Rikhil Nagpal. A warm greeting to our respected principal, Mrs. Preeti Sarva ma'am, to our dedicated and inspiring teachers, and a warm welcome to all students present at the Institute of Fashion Technology IPS Academy. I'm Divya Mathurkar, and I am absolutely thrilled to stand before you today as we embark on a journey into the dynamic world of fashion. I would like to call Preeti Sarva ma'am to welcome Mr. Rikhil Nagpal with Tulsi Podha. Thank you so much, sir and ma'am. I would like to call Preeti Sarva ma'am to welcome Dr. D.C. Rathi with Tulsi Podha. Thank you so much, sir and ma'am. I would like to call Rupali ma'am to welcome Dr. Manjula Nigwal with Tulsi Podha. I would like to call Rupali ma'am to welcome Dr. Anita Solanki with Tulsi Podha. I would like to call Sheetal ma'am to welcome Dr. Sapna Malviya with Tulsi Podha. I would like to call Rupali ma'am to welcome Dr. Sunita Sakel with Tulsi Podha. I would like to call Dimple ma'am to welcome Dr. Abhilasha Thakur with Tulsi Podha. I would like to call Dimple ma'am to welcome Mr. Yash Chauhan with Tulsi Podha. Before we dive into the heart of our workshop, I would like to extend a special welcome to our esteemed speaker for the day, Mr. Rikhil Nagpal. He is not just a designer, he is a design analyst, someone who passionately advocates for the transformative power of design. He is an expert in graphic design, UI UX design, computer aided design, merchandising, entrepreneurship, IPR, garment production, technology. He is a lifestyle coach as well. He has been the vice chairman in the Textile Association India Delhi unit. He has been dean, principal, head and professor in various prestigious design colleges. He has served in the industry as a senior merchandiser. He is an alumnus of TITS Bhivani. He has pursued various design courses from New York and Milan. His research papers are published and he has trained 20,000 plus students virtually in 160 countries. He is a guest speaker with various public and private sector organizations as well. Let's give him a round of applause to express our gratitude for being here with us today. Ever wonder what's new in the world of fashion designing? Curious about creating a stunning 3D digital fashion portfolio? Eager to understand the ins and outs of 3D fashion designing? Well, you are in a right place. Fashion, as we know, it is constantly evolving and staying ahead of the curve is key. Today, we have something truly special for all the fashion enthusiasts, designers, and professionals in the room. A workshop that explores the cutting edge of real 3D fashion designing. We are thrilled to invite you to a workshop on 3D fashion designing. This workshop is not just an opportunity, it's a gateway to expanding and upgrading your fashion skills with the latest innovation in the industry. So fasten your seatbelts and get ready for an enlightening session. It is distinct honor to invite our esteemed speaker, the design evangelist himself, Mr. Nikhil Nagpal, to the stage. Let's give him a round of applause. Welcome everyone to the workshop, and thank you Preeti ma'am for calling me here and welcoming as well. Good evening guys. Good evening, sir. Very good evening guys.
आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से ट्राई करें. गुड इवनिंग गाइज. स्लाइटली बेटर, थोड़ा सा और, डेसिबल लेवल नहीं मीट हुआ. गुड इवनिंग. मच बेटर. थैंक यू सो मच. ओके, आज हम बात करने वाले हैं 3D फैशन डिज़ाइन के ऊपर. बट बिफोर वी गो टू इन 3D फैशन डिज़ाइन, लेट्स टॉक अबाउट फैशन डिज़ाइन फर्स्ट. शैल वी? हाँ, ओके. मैं इस सेशन को इंटरैक्टिव रखना चाह रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकें और वो सवाल पूछ सके जो शायद मुझे किसी और ने नहीं पूछे हैं. क्योंकि जो किसी ने भी पूछे हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट. बट आपके कुछ अगर अलग सवाल आते हैं तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल. ठीक है? तो पहली चीज़, जब हम डिज़ाइन में काम करना शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी वर्क ऑन? एनीवन? Come on. Uniqueness, but before that, before anything is unique, what it is? An idea, right? क्या होना चाहिए? आइडिया तो होता है किसी भी चीज़ के लिए, उसके बाद ही हम उस पर वर्किंग या प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट करते हैं. Yes or no? Great. तो एक आइडिया को रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करने का मेथड क्या है? किसी भी आइडिया को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड क्या है किसी भी आइडिया को प्रेजेंट करने का? Who said that? Somebody said something. किसी ने बोला ऑन पेपर. किसने बोला था? हो गया, नहीं बोला. मुझे ही आवाजें आ रही है लगता है. हाँ, बोला किसी ने? ओके, अच्छा, सॉरी. ऑन पेपर आपने बोला नहीं. मतलब इट इज अ गुड आइडिया, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है? पहला, आपके माइंड में आइडिया आता है, राइट? अब आपको अपने किसी दोस्त को बताना है या डिस्कस करना है कि कैसे उस पर वर्कआउट स्टार्ट करें, तो आप क्या करते हैं? पहली चीज, कम्युनिकेट करते हैं. सबसे पहली चीज, आप उस चीज को बताते हैं, राइट? बताते हैं. अब आप एक फैशन डिजाइनर है, आपने कोई चीज देखी है, आप कितनी डिटेल में उसको बता सकते हैं? देखी का मतलब इमेजिन की है, राइट? ट्राई करें. इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट अ कार की, क्या आता है दिमाग में? हाँ, की आता है, लेकिन बेटर वे में अगर एक्सप्लेन करोगे तो मैंने बोला ही था. क्या आया दिमाग में वो बताना है. दैट्स व्हाट हैपेंस. कार की तो आएगा सर, बट नोबडी सेड सर ब्लू कलर का हैंडल है, उसमें BMW का लोगो है और थिकनेस उसकी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 mm होगी, लेंथ तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर, और उसमें रिमोट में बटन्स भी हैं की के अंदर. नाउ व्हाट हैपन? आइडिया आया, मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा की, मैंने भी कहा की, बट डिड वी अंडरस्टैंड इट? पार्शियली. पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसको डिटेल देनी पड़ती है. नाउ दैट डिटेल, कार की आपकी जो है, या BMW कार की जिसको भी हम कह रहे हैं, राइट? ये जो डिटेल है, इस डिटेल को एक्सप्लेन करते हुए आप कुछ और तरीके से समझाएंगे, सामने वाले के माइंड में परसेप्शन कुछ और चल रही होगी, और क्या हो जाता है? कंफ्यूजन. तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे. नेक्स्ट स्टेज आती है, लिख देते हैं चीजें या लाइन डायग्राम बना देते हैं. इज दैट राइट? उसके बाद आगे जन्म होता है 3D या 2D रेंडरिंग्स का, कि हम उसको स्केच करते हैं, कलर करते हैं, और वो बेटर तरीके में प्रेजेंट कर पाते हैं. यही होता है, चाहे वो कोई भी चीज का डिजाइन है, फैशन का है, प्रोडक्ट का है, एनीथिंग. व्हाट इज गोना हैपन? आप क्या करोगे? उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से ड्रॉ करोगे. थर्ड थिंग वुड बी, नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी? प्लीज, कुछ तो बोला. डिटेलिंग ऐड करेंगे. डिटेलिंग हो सकती है कलर्स के फॉर्म में, मेजरमेंट के फॉर्म में, एंड फर्दर नेक्स्ट थिंग, अब आपने एक बार बनाया उसको, मैंने कहा यार ये ना बहुत अच्छा है, कार की बहुत अच्छी चल रही थी BMW वाली, पर इसमें जो लोगो का कलर है ना, ये मुझे गोल्डन नहीं चाहिए, सिल्वर चाहिए. तो क्या करोगे आप?
मॉडिफिकेशन करोगे तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा उसको. नाउ वी आंसर दैट क्वेश्चन बाय 2D CAD. आपने नाम सुना होगा कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप. कोई भी चीज़ है आप एक बार बनाते हो, आपने प्रेजेंट किया, somebody says नहीं मुझे इस कलर में चाहिए, तो अब आप क्या करते हो, 3-4 ऑप्शन और बनाते हो, सारे कलर्स एक साथ दिखा देते हो. डिसीजन मेकिंग ईजियर हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, राइट. सो दैट हैपन्स इन एवरी डिजाइन डोमेन. कि आइडिया से हम स्टार्ट हुए थे, बातचीत हमारा पहला मेथड था, सेकंड हमने ड्रॉ किया, थर्ड हमने स्केच किया, रेंडर किया डिटेल्स में, फोर्थ वन हम 2D डिजाइन पर चले गए, यानी कि कंप्यूटर के हिसाब से हमने जनरेट किया. क्यों? क्योंकि अगर चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तो चेंजेस और मॉडिफिकेशन जो है इजी हो जाएंगे और ये वर्क जो होगा रिपीटेटिव नहीं रहेगा. आपने एक बार किया, अभी आप सेम को सेव एज करके सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बना सकते हो, लेकिन अगर आप ड्रॉ कर रहे थे तो आपको पूरा का पूरा दोबारा बनाना पड़ रहा था, राइट. उसके बाद किस चीज पे जाते हैं? अब हम स्पेसिफिकली फैशन के डोमेन में आ जाते हैं. उसके बाद हम किस चीज पे जाते हैं स्पेसिफिकली? सेलिंग? नहीं, बहुत दूर है अभी. पहले उसको फाइनलाइज कर लेते हैं. अभी हमने 2D डिजाइन बनाया है, अब आप उसको एक्चुअल में देखना चाहेंगे, क्योंकि गारमेंट या फैशन क्लोथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब कट कर ले हम उसको और चेक कर ले फिट भी होगा या नहीं, और एक्चुअल में जैसी हमने लुक बनाई है, अपीयरेंस बनाई है, क्या वो स्टेबल है या नहीं, एग्जैक्टली वैसा दिखेगा या नहीं. तो उसको हम बोलते हैं सैंपल फॉर्मेशन या सैंपल मेकिंग या सैंपल कंस्ट्रक्शन, वॉट एवर यू कैन कॉल इट. अब ये सैंपल जब आप कटिंग करते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो जाता है, टीडियस हो जाता है. कैसे? आपने सैंपल के लिए फैब्रिक लिया, सिमिलर लुकिंग फैब्रिक अवेलेबल है या नहीं, पहली प्रॉब्लम. फिर आप उसका पैटर्न कंस्ट्रक्ट करेंगे, कटिंग करेंगे, राइट. जब आपने पैटर्न कंस्ट्रक्ट किया, कटिंग की, अब आपका वैसा सिमिलर लुकिंग गारमेंट स्टार्ट हुआ, बट क्या वैसा फिट आया या नहीं अभी भी हमें नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग वंस, ट्वाइस, तीसरी बार तक में 99% आपकी फिटिंग परफेक्ट आ जाती है. होता है ऐसा, राइट. लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि वो सैंपल जो है ना, उसमें जो फैब्रिक का कलर था वो चेंज कर दो, तो पूरी प्रोसेस का क्या करना होगा तुम्हें? रिपीट. थर्ड टाइम करना पड़ा तो फिर से रिपीट. सो जो चीज का सोल्यूशन हमने 2D CAD में ढूंढा था, फाइनल प्रोटोटाइपिंग में हमें वो फिर से प्रॉब्लम आने लगी. उसी का सोल्यूशन है कुछ सॉफ्टवेयर्स जो अब हम 3D फैशन जिनकी बात करते हैं. बीट टुका, बीट क्लो, बीट स्टाइलिस 3D, ब्राउजवेयर, ऑप्टिटेक्स, सभी ने जो भी PDS थे, पैटर्न डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स थे, उन्होंने अपने 3D ऑप्शंस लॉन्च करने शुरू कर दिए. बट दिस वन दैट इज मोर फेमस एंड रीडली अवेलेबल, दैट इज क्लो. और हम आज उसी की बात करें. बट बिलीव मी, आप उसके अलावा भी अगर 3D फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट. ओके, शैल वी प्रोसीड विद इट? तो व्हाट इज क्लो जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्टार्ट कहां से हुआ फिनोमेना. ठीक है. यूजुअली मैं जब सेशन लेता हूं तो पहला सेशन यही होता है कि व्हाट इज द स्टोरी. क्योंकि हम लोग क्या हैं भाई, कौन है हम लोग? स्टूडेंट्स हैं. और कल क्या होंगे? तो आज क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? डिजाइन स्टूडेंट्स या डिजाइनर्स? अच्छा, एक चीज पे एग्री कर लें, फॉर दिस सेशन वी आर डिजाइनर्स, एवरी वन ऑफ अस. आप अगर सोचते हैं कि डिजाइनर्स नहीं हैं तो कभी नहीं होंगे, लेकिन अगर सोचते हो तो आप हो उसी मोमेंट से. द ओनली थिंग इज यू नीड टू रियलाइज इट. सो बीइंग अ डिजाइनर, आप सबसे पहले क्या चीज समझते हैं? अगेन हम वापस आ जाते हैं आइडिया पे. वापस आए और आइडिया को समझाते कैसे हैं? What is the one thing that you need to make others understand your idea? यार मार्क्स वार्क्स देने वाले हैं क्या मैम हम इस सेशन के? ये तो चुपचाप क्यों बैठे हैं ये? ओ भाई, कोई फेल नहीं होने वाला है, टेस्ट नहीं हो रहा है. ट्राई करें फिर से. आइडिया को किसी को समझाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपने जवाब दिया था, कम्युनिकेशन, राइट. लेकिन कम्युनिकेशन में भी अब दो कैटेगरी आ जाती है.
डोमेन थी क्लो 3D की, लेकिन ये बताए बिना आगे जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरी टेलिंग. यू नीड गुड स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपका डिजाइन बहुत अच्छा हो लेकिन सामने वाला इतना बिजी है कि उसको फोकस किसी और चीज पे है, एंड द पर्सन इज नॉट नोटिसिंग द फैक्टर्स दैट यू वांट टू एक्सप्लेन. तो क्या होगा, अब आपको उसको साथ में बिठाना होगा. यू वुड नीड टू टेल द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम. पर अगर हम ही अपनी स्टोरी नहीं बताएंगे, जो कि मोस्टली डिजाइनर्स करते हैं, तो यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसके पास हमारा कोई यूएसबी कनेक्शन शेयर्ड है कि बटन दबाया स्टोरी ट्रांसफर हो गई और उसको भी वही समझ में आ गया. तो फिर क्लो 3D की भी क्या जरूरत है, आइडिया ही समझा देंगे, है ना. सो यू नीड ए गुड स्टोरी. बट यहां हम बात कर रहे थे स्टोरी टेलिंग की. तो व्हाट इज द क्लो स्टोरी, हाउ इट केम टू बीइंग, कैसे आया क्लो इन एग्जिस्टेंस. प्लीज कैन वी हैव माई स्क्रीन. हेलो, ओके, ऑडिबल, ठीक है. कहाँ पे थे हम, क्लो स्टोरी पे थे, राइट. तो हाउ डिड इट स्टार्ट, तो जरा चेक करते हैं यहाँ पर. आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग हियर. दिस इज द क्लो स्टोरी. दिस इज मिस्टर जेडन, एक साउथ कोरियन, एंड ही वॉज ए PhD स्टूडेंट. इनको ना मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से थे और इंटरेस्ट था सिमुलेशन में. सो फॉर फन ही मेड अ गेम कि लेट्स ट्राई सिमुलेशन. इट वॉज, बोलते हैं ना, बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हैं. दिस वॉज वन ऑफ देम. एंड ये चीज़ एक ये भी दिखाती है कि किस तरह से एक आइडिया, एक स्ट्रीम का आइडिया किस तरह से दूसरी किसी स्ट्रीम का फ्यूचर चेंज कर देता है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. इन्होंने पहला प्रोटोटाइप डेवलप किया, और जैसा कि स्टोरी में लिखा हुआ ना कि 3D गारमेंट्स के साथ फन करने के लिए, तो इट वाज नॉट 3D गारमेंट्स एट दैट टाइम, ओनली फैब्रिक था वहाँ पर जिसको आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर थ्रो करके ड्रेप कर सकते हैं. यानी कि जैसे आप टेबल पे क्लॉथ बिछाते हो ना, थोड़ा एक साइड से खींचते हो, ज़्यादा खिंच गया, फिर दूसरी साइड से सेट करते हो. सो ही वाज स्टडिंग दैट इफेक्ट, सिमुलेशन. और इस सिमुलेशन से उन्होंने ये एक छोटा सा गेम बनाया और अपने कॉलेज में, जैसे PhD स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाकी मास्टर्स और जूनियर स्टूडेंट्स को दे दिया प्ले अराउंड करने के लिए, देखो ज़रा क्या चीज़ है. एंड पीपल लव्ड इट. यार ये बहुत मज़ेदार है, बट इसका एक्चुअल यूजेज भी हो सकता है. एंड यहाँ से उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया कि कोई भी इसको चेक कर सकता है. एंड देन केम द सेकेंड थिंग. नाउ सबसे पहले इसको यूज़ किया कॉस्प्ले आर्टिस्ट ने. कॉस्प्ले, कॉस्ट्यूम प्ले आर्टिस्ट. बेसिकली कितने लोग हैं दशहरे दीपावली के आसपास रामलीलाएं देखने जाते हैं. ओके, वैसे ये कल्चर काफ़ी कम होता जा रहा है अभी, बट इट इज़ वेरी नाइस टू हैव दिस काइंड ऑफ कल्चर, एंड बहुत अच्छी चीज़ें उसमें होती है. लेकिन आप देखो कि उसमें कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो ओरिजिनल स्टिच किए जाते हैं, राइट. अगर आप कुछ भी ऐसा प्ले जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दी स्टोरीज हमें पता है ट्रेडिशनल क्लोथिंग कैसी है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नया सोच रहे हो तो उसके लिए आपको नए डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं. अब नए डिज़ाइंस बनाओगे, होगा क्या, पहली बार में शायद फिटिंग सही ना आए, गलत बने, 3-4 बार बनाने पड़ते थे. तो कॉस्प्ले आर्टिस्ट को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप इनको यूज़ करके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते थे. और फाइनली जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाता था तो उसको एक्चुअल डिज़ाइन आप बना के और अपना कॉस्ट्यूम प्ले कर सकते थे. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. एंड लेटर ऑन जब इन्होंने सजेस्ट किया कि ये बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उन्होंने उसको कॉस्प्ले आर्टिस्ट की कम्युनिटी में सेंड किया, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि अभी तक सॉफ्टवेयर पूरी तरह से बना नहीं था. इट वाज इन प्रोटोटाइप फेज, एंड ऑलमोस्ट 20 लाख वर्चुअल कॉस्प्ले आर्टिस्ट ने इसको ट्राई किया, और यहीं से स्टार्ट हुआ मार्वलस डिज़ाइनर. बट वेट, वी वर टॉकिंग अबाउट क्लो 3D, तो मार्वलस डिज़ाइनर कहाँ से आ गया? सी, मार्वलस डिज़ाइनर एंड क्लो 3D बोथ आर द सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम द सेम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. मार्वलस डिज़ाइनर सर्व करता है डिजिटल क्लोथिंग को, जो कि मेटावर्स स्पेस में गेम डिज़ाइन में आप यूटिलाइज कर सकते हैं.
और क्लो सपोर्ट करता है उसी चीज़ को एक्चुअल क्लोथिंग को कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेज आती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं थी, क्योंकि मार्वलस डिज़ाइनर के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ कि उसके बहुत सारे क्रैक वर्जन्स मार्केट में थे, और क्रैक वर्जन होने की वजह से लग रहा था कि क्या ये सॉफ्टवेयर प्रॉफिटेबल होगा, और अगर वहाँ पर उस टाइम छोड़ दिया गया होता तो हमारे पास ये चीज़ आज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होती। तो आपको वर्कशॉप में आके बैठना नहीं पड़ता, मेरी बोरिंग बातें नहीं सुननी पड़ती, बट नाउ यू आर ट्रैप्ड विद मी, सो सॉरी। बट ये मेरी नहीं, उनकी गलती है, ठीक है। ओके, सो हुआ तो यही था कि क्रैक वर्जन्स की वजह से ये बंद हो जाता, लेकिन जब इसकी क्वालिटी मूवी मेकर्स तक पहुंची, उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया। बट वेटा डिजिटल जैसे कहते हैं कि इनका जो फर्स्ट क्लाइंट था वो अगर क्रैक वर्जन यूज़ करेंगे तो कभी भी कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, और उस केस में बहुत लंबे चले जाते हैं, तो वो यूजली पे करके खरीदना चाहेंगे उस चीज़ को। सो दे कॉन्टैक्टेड देम, और एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन में जो आप अपीयरेंस देख रहे हैं उसमें जो क्लोथ्स बने हुए हैं, वो रियलिस्टिक लुक जो आई वो मार्वलस डिज़ाइनर से क्रिएट की गई। एंड फ्रॉम देयर इट्स जर्नी टू बिकम प्रॉफिटेबल स्टार्टेड। अब किसी भी कंपनी में फंड आएगा तो डेवलपमेंट और बढ़ेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है आगे की कहानी कि किस तरह से यूज़र्स ने उसको समझा, लेकिन उस के ऊपर फीडबैक भी दिया। तो यूज़र्स का फीडबैक लेके वो आगे बढ़े, क्रैक्ड वर्जन से सेल पर स्टार्ट किया उन्होंने, और क्लो 3D जैसा हम देखते हैं वैसा बनना स्टार्ट हुआ। एंड इसी का आगे वो गारमेंट डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स के पास लेकर गए, उनसे सजेशंस मांगे। बिकॉज आई रिमेंबर इन 2014 व्हेन आई वाज यूजिंग मार्वलस डिज़ाइनर, और आज जब मैं क्लो 3D यूज़ करता हूँ तो उसमें मैसिव डिफरेंस है। अर्लियर इट वाज जस्ट अ हॉबी प्ले कि आप फैब्रिक्स को यूज़ करो, किसी भी तरह से ड्रेप करो, बट नाउ यू कैन ऐड टेक्निकल डिटेल्स इनटू इट। मतलब आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि उस पर 5 थ्रेड ओवरलॉक डलेगा या 4 थ्रेड ओवरलॉक डलेगा, मतलब टेक्निकल डिटेल्स ऑफ अ डिज़ाइनर। आप उसको सिल्वेट लाइन से भी एडिट कर सकते हैं, प्रिंसेस लाइन से एडिट कर सकते हैं। दीज आर द लेवल, दिस इज द लेवल जहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। इन द एंड मैं अब इस स्टोरी को और ज़्यादा आगे लेके जाता हूँ, तो वो हम सेशन का हिस्सा बनाएंगे जब हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए मुझे सिर्फ ये बताना है कि व्हाट दिस सॉफ्टवेयर कैन डू। मेरे ख्याल से आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वहीं पे वापस लेके आता हूँ आपको, कि आपने 2D डिज़ाइन बनाया, कलर्स आप चेक कर पा रहे थे, राइट। बट नाउ आपको 3D जब बनाना है, एक्चुअल बनाना है, फिट तो आप उसी पे चेक कर पाओगे, और कटिंग आपको करनी पड़ रही थी, फैब्रिक भी अरेंज करना पड़ता, फैब्रिक की सोर्सिंग के लिए जाना पड़ेगा, टाइम लग रहा था। तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, और चेंज अगर कुछ हुआ उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट कर। बट वॉट हैपन इन 3D फैशन डिज़ाइन कि आप जो मेजरमेंट चाहते हैं उसका मैनिक्विन क्रिएट कर सकते हैं। यूजली क्या होता है, लैब्स में स्टैंडर्ड मैनिक्विन्स अवेलेबल होते हैं, राइट। हम साइज सेट बनाते हैं मार्केट में और चेक करते हैं तो किसी लाइव मॉडल पे ही चेक कर पाते हैं। पर अगर आपको कैपेबिलिटी मिले कि आप अपना साइज या अपने किसी फ्रेंड का साइज या क्लाइंट का साइज एज इट इज़ उसमें डाल के मैनिक्विन क्रिएट कर सके, और उसमें आप फैब्रिक, जो फैब्रिक आप चाहते हैं, जितने GSM पे, जितने वेट पे, जिस कलर में, जिस प्रिंट में, आप उसको ऐड कर सकें और लिटरली उसको ड्रेप करके चेक कर सकें कि वो कितने हद तक किसी भी एक्टिविटी में फिट आ रहा है। Now even Clo can tell you by analyzing the fit कि वो गारमेंट कहाँ से फिट नहीं होगा और कहाँ से फिट होगा, कौन से स्पॉट्स होंगे जहाँ से उसके फटने के या स्ट्रेस आ रहा होगा सीम पे, या प्रेशर पॉइंट बन रहे होंगे कि यहाँ से अगर ये ओवर यूज़ किया गया तो वो फट सकता है। मतलब अभी तक भी हम फिट की बात कर रहे थे लेकिन क्वालिटी तक नहीं पहुँचे थे, क्योंकि उसके लिए तो वियर एंड टियर टेस्ट करना पड़ता है, एंड इंडस्ट्री उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करती है। अब अगर आपसे कोई ऑप्शन मानता है कि मुझे 3 कलर्स में चाहिए या ये प्रिंट चेंज कर दो, नाउ यू कैन प्रेजेंट इट। बट उसके बाद स्टार्ट हुआ ट्रेंड डिजिटल फैशन शो का, एंड बिलीव मी, नॉट ओनली फैशन शो,
एडोबी ने जब इसमें अपना सब्सटेंस लॉन्च किया और एनिमेशंस लॉन्च किए, तो नाउ विद द हेल्प ऑफ क्लो you can create 2600 plus animation with the garments that you're creating. So now your model can walk, can dance, can fight, can run, can play, whatever you want her to do, she can do it for you. तो इतनी सारी चीज़ों से होगा क्या? बेसिकली आप चेक कर पाएंगे कि गारमेंट किस कंडीशन के लिए सूटेबल है. बट व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी आर गेटिंग इन हियर? मैं आपको अब यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप स्टाइल लाइंस एडिट करके गारमेंट को बड़ा छोटा कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट पैनल्स बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं उनको डिफरेंटली. और आपको दो चीज़ें, पहले तो कोई भी रिसोर्स पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ट्राई करना है. एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन में जो आपको टाइम लगता था वो टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ के लिए. एंड नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली, राइट. बार बार उसको ट्राई कर सकते हो और छोटे छोटे चेंजेस जो एक्सप्लोर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. दिस इज द पावर. नॉट ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी आप इंडस्ट्री में जाओगे जॉब्स के लिए तो यूल रियलाइज़ कि मर्चेंडाइजिंग हो या डिज़ाइनिंग, कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे. मटेरियल आप सिलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं, देन सैम्पल आप बनाते हैं. यूजुअली हमारे बायर्स यूरोप या यूएस में हैं तो हम सैम्पल्स यहाँ से भेजते हैं. सबसे मेजर एक्सपेंस आ जाता है हमारा कोरियर का, क्योंकि इंटरनेशनल कोरियर वहाँ से जाएगा. फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, कोरियर जब पहुँचेगा वहाँ लाइव मॉडल जो आते हैं दे आर चार्जिंग पर आवर बेसिस. वो गारमेंट ट्राई करेंगे, फिट नहीं हुआ तो आपको दोबारा सैम्पल बनाना है, आपको कमेंट्स आ जाते हैं. तो ये प्रोसेस 2 से 3 बार होता है. बट व्हेन यू आर डूइंग इट डिजिटली, ये आपके पास ही हो रहा होगा और 2 डिज़ाइनर्स के बीच में हो रहा होगा, और वो भी वर्चुअली. एक यहाँ है और एक बायर के एंड पे बैठा हुआ है. वंस दे आर डन विद द फाइनलाइजेशन तभी गारमेंट बनाना पड़ेगा. तब तक फैब्रिक भी आ जाएगा, पैटर्न भी जो होगा पैटर्न मास्टर से आपको फाइनलाइज नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि क्या होगा आप डायरेक्टली उसको प्रिंट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द परफेक्ट फिट पैटर्न फॉर दैट. एंड इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स इसको ऑप्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज दो द इन्वेस्टमेंट इज देयर इन सिस्टम्स, बट बहुत ही ज़्यादा फास्ट और एक तरीके से सस्टेनेबल भी हो जाती है ये चीज़. बहुत सारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा जो सैम्पलिंग में हो रहा है, बहुत सारा रिसोर्स उसको प्रिपेयर करने में वेस्ट नहीं होगा, टाइम का रिसोर्स जो मैं कह रहा हूँ. सो कितने लोगों का काम आसान तेज़ हो जाता है इससे. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वी ओनली ट्राई इट एज हॉबिस. हाँ, ये डाल के देख लिया, डिटेल्स में नहीं जाते हैं. एंड यू नो व्हाट, क्या बोलते हैं, डिटेल्ड अगर आए आपके पास है तभी आप एक परफेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो ये इस सॉफ्टवेयर के साथ आपका जो सैम्पल रिव्यू का प्रोसेस था वो इतना फास्ट हो जाता है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है. ऑब्वियसली मैंने बोला कि सस्टेनेबिलिटी आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि आप फैब्रिक नहीं बाय कर रहे हो, उसको कट नहीं कर रहे हो. ये सब आप एक्चुअल गारमेंट पे करोगे जहाँ पर आप मिनिमाइज कर पाओगे वेस्टेज को. तो हमारी सबसे पहली चीज़ क्या होता है, कोई भी कंपनी क्या चाहेगी वेस्टेज कम हो, लेकिन हमारे रिसोर्सेज की अगर वेस्टेज कम हो रही है तो कहीं ना कहीं हम टेक्निकली कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, हम अपनी अर्थ के लिए कुछ कर पा रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग इट सस्टेनेबली एंड वी आर क्रिएटिंग इट फास्टर. दैट इज़ द यूटिलिटी. और कुछ कंपनीज, अगर आप लोगों के लिए अब इसमें क्या फ़ायदा है, आप अपनी डिग्रीज करेंगे फैशन डिज़ाइन में, यू विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स, बट कंपनीज आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोफाइल्स जहाँ पर लोगों को या तो क्लो 3D आता हो, या ब्राउज वेयर आता हो, या स्टाइलिश 3D आता हो, या टुका 3D आता हो. एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने इनमें से एक भी सॉफ्टवेयर किया तो दूसरा सॉफ्टवेयर आपके लिए समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा. या देयर विल बी सम डिफरेंट ऑप्शंस, बटन्स, एंड कुछ चीज़ों के नाम भी अलग होंगे, बट स्टिल यू वुड बी एबल टू डू इट फास्टर, ईजियर एंड इन एन एफिशिएंट मैनर. मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, 2 साल पहले मेरे पास अमेज़ॉन के हेड ऑफ सेल्स का, फैशन सेल का मैसेज आता है, यार गिव मी 4-5 3D डिज़ाइनर्स. मैंने कहा ठीक है ले लो, ब्लेंडर वाले हैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू. क्या नहीं, ब्लेंडर वाले नहीं चाहिए, वो मेरे पास हैं, आई नीड इट फॉर फैशन स्पेसिफिकली.
मैं कहा ओके, बट अभी तो बच्चों को पता भी नहीं और वो कर भी नहीं रहे। कहते कोई तो होगा इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर भी चलेगा। मैं कहा लेट मी लुक एट दैट, पर सैलरीज कितनी हुई? कि सैलरीज आर गोना स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 50K, और वो भी 3 महीने के टेस्टिंग पीरियड में। आफ्टर दैट विल इंक्रीज इट। I couldn't find one. Then started teaching this program as well on a regular basis, क्योंकि इंडस्ट्री आपसे मांग रही है। उसके बाद मैट्रिक्स क्लोथिंग से आया, तब तक मेरे पास कुछ बच्चे थे, मैंने उनको भेजा एंड दे वर्किंग वेल। कुछ और इंडस्ट्रीज से भी आया। तो टिपिकली द पॉइंट इज कि इंडस्ट्री जो चीज़ मांग रही है, हमारे पास अगर वो नहीं है तो फिर हम जो पैसे मांग रहे हैं वो हमें नहीं देने वाले हैं, राइट? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेशन। आप इस बात को मजाक में भी टाल सकते हो और इसको सीरियसली भी ले सकते हो, लेकिन सोचो कि हमें काम तो करना ही है ना। एंड द थिंग दैट गिव्स अस अ गुड स्टार्ट, व्हाई शुडंट वी डू इट? बट देन आई रियलाइज्ड नॉट ओनली दिस, इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर टीचर्स एज वेल। लाइक मैं अगर आपसे पूछूं जिपर्स कितने टाइप के होते हैं? एनी आंसर? मेटल जिपर, प्लास्टिक जिपर, वेजलॉन, कंसील्ड जिपर्स, राइट? कुछ को एकदम एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन हो गई कि मैंने कौन कौन से जिपर्स का नाम लिया है, राइट? पर बहुत सारों को नहीं। आपने कहाँ देखे? बुक्स में देखे, एक्चुअल जिपर्स जाके मार्केट में सर्च किए। बट व्हाट इफ अ टीचर इज टीचिंग अपैरल प्रोडक्शन मेथडोलॉजी और वो जिपर पढ़ा रहे हैं और उसका 3D मॉडल दिखा पाए, एंड दैट टू स्टैंडर्ड YKK, कि उसमें कितने इंच का आता है और स्टैंडर्ड साइजेस क्या है, चेंजेस करके हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको नहीं लगता जब कोई विजुअलाइज कर पाएगा तो उसको ज़्यादा याद रहेगा, राइट? एंड अनदर थिंग, जब आप जाते हो इंडस्ट्री में तो आपको बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ मिलती है जिस पे आपको सारा टाइम काम करना होता है, इफ़ यू आर अ मर्चेंडाइजर। और अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपको उस चीज़ को बनाने में हेल्प करनी होती है। और मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उस चीज़ के साथ था, मैं डर गया था यार, क्योंकि नाम ही उसका होता है बॉम्ब। बाद में समझ आया BOMB नहीं है, BOM है, बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर गोना गेट इनटू अ गारमेंट टू क्रिएट इट। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक 2D सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता था कि आपको चीज़ें डालनी है, मैसेजेस डालने हैं और फिर उसको एक्सेल शीट में ऐड करना है। व्हाट क्लो डज फॉर यू, कि आपने जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो ऑटोमेटिकली उसको बिल ऑफ मटेरियल बना के दे देता है, एंड यू कैन फॉलो अप इन द कॉस्टिंग एंड टाइम एंड एक्शन प्लान ईजीली। आई नो देयर विल बी सम थिंग्स जो आपको अभी जिब्रिश लग रही होंगी, पर जैसे ही इंडस्ट्री में एंटर करोगे, दीज विल बी द थिंग्स दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। दिस इज हाउ क्लो वर्क्स। और मुझे सिर्फ इतना ही बताना था क्लो के बारे में, बट आई वुड वॉन्ट यू टू नोट फ्यू थिंग्स। तो अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। stylist3d.com, दिस इज होम फॉर स्टाइल 3D, मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अच्छा, दिस इज मेड इन कोरिया है। एक मेड इन इसराइल भी है, वी कॉल इट ब्राउजवेयर, वी स्टिचर, BROWZWEAR। देन ऑप्टिटेक्स 3D, टुका 3D, एंड ऑडासिस फैशन स्टूडियो। आप देखेंगे कि इनके फाउंडेशन एक ही है, और एक करना मतलब आप 5 के आसपास पहुंच रहे हैं। यस, कौन सा? मुझे नहीं पता आपने 5 कौन से नोट किए और कौन सा छठा रह गया। बाकी तो बताओ। अच्छा, एक बार और बताऊं? ओके, सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ब्राउजवेयर, स्टाइल 3D, ऑडासिस फैशन स्टूडियो, ऑप्टिटेक्स, टुका 3D, आई बिलीव आई हैव कवर्ड ऑल। मेड इन चाइना भी हो गया, मेड इन कोरिया भी हो गया और मेड इन इसराइल भी हो गया। मेड इन इंडिया शायद आप में से कोई बना दे तो आई विल टीच दैट एज वेल, वेटिंग फॉर दैट। So this is about the software, and what we are talking about here is this is a program that is being launched by IPS. Usually मैं जब ये program करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हम एक स्टैंडर्ड फ़ी रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25,000, जिस पे डिस्काउंट हमारा रहता है, जिसके साथ 15,000 में ये कोर्स कवर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 45 आवर्स का ये कोर्स रहता है।
But Preeti ma'am contacted me and she said we want to collaborate on this. लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको हमारे स्टूडेंट्स के लिए या और किसी के लिए भी थोड़ा सा बजट में लेके आएँ. We worked on things and we're keeping the same content in that, but the cost is 10,000 for this course. And it's going to be a 1-month course and 45 hours. Again, the similar hours we'll be doing on that. We'll be teaching for that number of hours only. But एक महीने में जल्दी ख़त्म करना इसलिए कि आपका बच्चा 2 महीने के लिए एंगेज नहीं रहे, वो कोई और काम भी कर सके और इसको 1 महीने में फिनिश करके आगे मूव ऑन कर सके, सो दैट ही और शी कैन मेक हिज और हर पोर्टफोलियो ऑन दैट. व्हाट वी गोना कवर इन दैट? ऑल द थिंग्स जो भी उस सॉफ्टवेयर में कवर की जा सकती हैं. बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि दीज आर सॉफ्टवेयर्स. एंड पता है इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत अच्छा होता है इसमें. आई मेट समवन फ्रॉम डिज़ाइन इंडस्ट्री इटसेल्फ. वो मुझे कह रहे हैं कि यार कोरल तो हमने भी किया था. मैंने कहा जी कब? कि 2007-8 में. मैं जी बहुत ही बढ़िया. कहते तो ये तो हम कर ही लेंगे. मैंने कहा सर ऐसा है 2007-8 में कोरल कुछ और था और 2022-23 में कुछ और है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, क्लो का भी ऐसा ही होगा क्योंकि 2014 में मार्वलस डिज़ाइनर कुछ और था और आज कुछ और है. एंड आने वाले 5 साल में इट विल बी पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एज वेल. यू विल बी सीइंग और यू आर एक्चुअली सीइंग सम ऑफ द डिज़ाइंस जो आप अभी रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता लग जाता है बिकॉज नाउ आप इन 3D मॉडल्स के फेस पे लाइव मॉडल्स भी वहाँ प्लेस कर सकते हैं. ये गारमेंट आपने क्लो 3D में बनाया है, बट वो जो मॉडल है उसका स्किन टेक्सचर अभी तक एक मॉडल की तरह, कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल की तरह नज़र आ रहा था. नाउ इट विल बी लाइक एन एक्चुअल ह्यूमन. एंड फॉर दैट देयर इज अ कंपनी जिसने ये लॉन्च किया एंड दैट इज मीटेल. यू कैन चेक इट ऑन गूगल एज वेल. और मीटेल के एक्सपेरिमेंटल सर्विसेज भी आप ट्राई कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोना कवर. बट आई वॉन्ट टू नो स्पेसिफिकली इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, आई एम रेडी टू आंसर इट. दैट्स इट. कोई सवाल नहीं है? नहीं? सबको क्लियर है जो मैंने समझाया या किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या समझाया? यहाँ हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, पर यूजली सॉफ्टवेयर डेवलप होता है किसी कोडिंग लैंग्वेज में. तो वो कोडिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है. आजकल ड्रैग एंड ड्रॉप भी आ गया है, लेकिन यूजली C++ में या पाइथन में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं. बट यू नो वन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट लाइक दैट कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपनी ज़िंदगी में बना रहे होगे. इफ़ इट इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइक दिस माइट बी अ केस कि एक ही इंसान ने आइडिया डेवलप किया और उसके बाद कम से कम 1200-1500 इंसान लगे उसको अपनी ज़िंदगी का पूरा एटलीस्ट 10 और 12 ईयर्स दे के उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को इस लेवल तक पहुँचाया. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क and time. Yes, we Indians are doing much on that, but still हम अपनी basic needs के हिसाब से चीज़ों पे काम कर रहे हैं rather than on this. They are moving faster. हाँ जी, सब कुछ समझ में आ गया क्या? अच्छा ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि कोई डिज़ाइनर डिग्री से बनता है या सक्सेस से बनता है? सो कितने के लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज तुम में से किसी ने भी सवाल नहीं पूछा. जिनको सक्सेस का पता है उनको एक चीज़ पता रहती है कि वो बहुत कंफ्यूज होते हैं हमेशा. और कंफ्यूज पता है क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और वो उनको ढूंढ रहे होते हैं. तो आपके पास तो सारे जवाब हैं. फिर से ट्राई करें. एनी फर्दर क्वेश्चंस? पूछने से शर्माएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पूछोगे 2-4 मिनट कोई क्लास वाला तुम पे हंस लेगा, 100 ग्राम खून उसका बढ़ जाएगा, बट आपको ज़िंदगी भर के लिए कोई चीज़ समझ आ जाएगी. और बीइंग अ डिज़ाइनर याद रखना, जिसने अपने आप को पहले नहीं प्रोजेक्ट किया, यू माइट नॉट इवन गेट एन अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम. फिर से ट्राई करते हैं. नाउ दिस इज़ द थर्ड ट्राई. नहीं आपको करना है तो मैं कुछ स्टूडेंट्स का जो कि FDDI में या छिंदवाड़ा में भी हैं या इंडिया के अलग अलग
रीजन्स में उनका वर्क आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने काम किया। हाँ, ये तो सही है, हम देखना तो चाहेंगे, है ना। ऑनलाइन NFTs के बारे में आपने सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स, कि वो आगे ट्रेड भी होते हैं। तो डिज़ाइनर्स ने एक बार बनाना होता है और 5% तो उनको हर सेल पे आता रहता है, जब मर्जी वो डिज़ाइन बिकता है। बट टिपिकली किसी भी गारमेंट इंडस्ट्री में अगर किसी ब्रांड को आपको ख़रीदना है, नॉट एज कि इंडिविजुअल गारमेंट खरीदना है, या किसी ब्रांड के बिजनेस को आपको ख़रीदना है, तो आप मान के चलिए कि आप किस तरह से ख़रीद पाएंगे उसको, कि आपने अगर उसका फिट, एग्जैक्ट फिट फाइंड आउट कर लिया, तो यू हैव एक्चुअली कॉन्कर्ड दैट ब्रांड, बिकॉज आप उसके जैसा फिट बना पा रहे हैं। और आपको रियलाइज़ होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स की फिटिंग डिफरेंट आती है, पर कुछ ब्रांड्स आपके लिए बहुत ही सुपर्ब तरीके से फिट होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। सो सोचिए कि डिजिटल डिज़ाइंस आपको वो फिट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर अच्छे फिट्स बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो कंपनीज आर गोना पे यू फॉर दैट। क्योंकि अगर आपने एफिशिएंट वे में फैब्रिक में उनको 3% बचा के दिया, और फैब्रिक जो है 100 रुपीज़ मीटर के हिसाब से कॉस्ट कर रहा था, 3 लाख पीसेस थे, तो आपने उनका कितना पैसा बचा दिया। 3% मतलब 3 रुपये 100 रुपये पे, और अगर 1 मीटर का भी वो गारमेंट था तो 3 लाख गारमेंट थे, जो सेव देम 9 लाख रुपीज़। आपको लगता है वो आपको पे नहीं करेंगे? 9 लाख का नुकसान झेलने को तैयार हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, आपका पोर्टफोलियो, बिकॉज यू गोना स्टिल फाइंड द जॉब, या फिर आप अपने क्लाइंट्स को अपना वर्क दिखाना चाहेंगे कि आप कैसा बना सकते हैं। इट्स गोना वर्क इन बोथ द वेज। क्योंकि अगर आप बुटीक में जाते हैं, अपना खुद का बुटीक लॉन्च करना चाहते हैं, ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, एंड योर क्लाइंट इज़ कमिंग एंड आस्किंग कि मुझे ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन चाहिए, तो आप कपड़ा काट दो, सब कुछ बना दो, बाद में वो कोई यार ये तो पसंद नहीं आया, हो गया नुकसान। बट फॉर दिस यू कैन शो देम फैब्रिक, और उस फैब्रिक को आपने डिजिटली ड्रेप करके एग्जैक्ट उनकी मेजरमेंट के हिसाब से उनको दिखा दिया। वंस दे एग्रीड, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि वो गारमेंट देखते हैं मॉडल्स के साइजेस पे और बड़े पसंद आते हैं, जब अपने साइजेस पे चेक करते हैं दे डोंट फाइंड इट दैट इंटरेस्टिंग। बट अगर आपने उनको उनके साइज पे ही वो चीज़ चेक करवाई और दे कुड फिगर आउट कि हाँ दिस इज़ लुकिंग बेस्ट, तो वो आपकी सेल पे कितना इम्पैक्ट होने वाला है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, किसी कंपनी के लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो और आपने पहले ही उस चीज़ को किया हुआ जिसकी ज़रूरत उनको है, आप अपना पोर्टफोलियो दिखा पा रहे हो उनको, डेफिनेटली अगर लैंड अप इन अ बेटर जॉब इन दैट केस, राइट। चलो ज़रा देखें कुछ चीज़ें, कुछ बच्चों का काम है, आपको दिखा देता हूँ। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ का वैक वीक था, कुछ बच्चों का अच्छा है, कुछ बच्चों का थोड़ा। येस, यू कैन क्रिएट योर डिजिटल फैशन शोज एज वेल, और अपने क्लाइंट्स को आप बहुत दूर बैठे होने के बावजूद भी ये चीज़ दिखा सकते हैं।
टेकिंग इट टू द एंड क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा शो ये, ठीक है? तो लास्ट में आपको दिखा देता हूँ कुछ और बच्चों का एंड देन वी आर डन विद दैट, राइट? और कुछ छोटे से शॉर्ट्स दिखा दूँ आप, जिसको आप जाकर अगर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो चैनल्स पे चेक कर सकते हैं. To go against that beauty is a trade and everyone is paid. Fashionista, how do you look? Fashionista, how do you look? New York, London, Paris, Milan, Tokyo. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. आई बिलीव दैट्स ऑल. बाकी आप जो भी जाकर चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हो. मेरे उसमें किस में मेरे को सवाल नहीं समझ में आया, पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, उसके बाद शायद सवाल रहे ही नहीं. देखो, दिस इज़ अ कोर्स विच इज़ गोना प्लेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ जनवरी. 8th of January से ये स्टार्ट होगा. इल बी अराउंड 1 month कोर्स. और क्योंकि हम ये कोर्स जो कर रहे होंगे वो ऑनलाइन मोड पे हो रहा होगा, तो यू विल बी लुकिंग एट योर ओन स्क्रीन बिकॉज वी हैव गॉट आवर ओन ऐप. और डे वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस उसमें जब जब लाइव हो रही होंगी वो साथ के साथ रिकॉर्ड भी होती जाएंगी. यानी कि जब आप उसको प्रैक्टिस करने बैठोगे यू कैन लुक एट दैट क्लास और आप अपना आगे उस पर वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, अब आपने वो देख लिया, सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, डिज़ाइंस बना लिए. डे टू डे प्रैक्टिस में 30 days इट्स गोना गो अराउंड लाइक दैट. आफ्टर दैट नेक्स्ट 15 days हम वो एक्सटेंशन आपको देंगे कि आपका कोई भी पार्ट पेंडिंग है तो आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नाउ यू हैव पेड द कोर्स फी फॉर अ मंथ.
आपने कोर्स कर लिया, आपने सीख लिया है, उसके बाद उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो नॉमिनल कॉस्ट पे वो एक्सेस आपको एक्सटेंड कर दी जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। दैट नॉमिनल कॉस्ट इंक्लूड्स, क्योंकि भाई सर्वर की कॉस्ट लगती है, बैंडविड्थ की कॉस्ट लगती है, तो उस कॉस्ट पे ही वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आई बिलीव फॉर द सेम कॉस्ट FIT न्यूयॉर्क चार्जेस $1,500 एंड 21 आवर्स का स्पेसिफिक कोर्स वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इतनी डिटेल्स कवर नहीं करते हैं। सो बिकॉज वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग कि हमें बच्चों को बहुत ही उस रेंज में अवेलेबल करवाना चाहते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स डन इन दैट कैटेगरी, ठीक है। बट स्टिल वी हैव थॉट कि 15 दिन का एडिशनल एक्सेस कम से कम उनका बनता है। ऑन रिक्वेस्ट इफ दे वांट दे कैन गेट अ ईयर्स एक्सेस, बट दैट विल बी चार्जेबल। नॉमिनल कॉस्ट होगा, आपके फीस जितना नहीं होगा, बट कुछ नॉमिनल कॉस्ट उसमें होगा, ठीक है। और हाँ, उसमें आपके डिज़ाइंस पे हमारा कोई कॉपीराइट नहीं होगा, वो आपके हैं, आपके हैं। देखो, सेल इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, सेल हम भी उसको नहीं कर सकते, वरना पता है क्या होगा, आप हमें कहोगे सर आपके कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का काम ज़्यादा बिकता है, बाकियों को आप मौका नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा होगा, वो अच्छे घंटे लगा रहे होंगे, पर आपको तो ये दिख रहा होगा सारी जगह डेमोक्रेसी होती है। तो एक काम करते हैं, दुनिया में सबकी सैलरी भी बराबर करवा देते हैं, कोई काम ही नहीं करेगा फिर। गॉट इट? बट हाँ, इसी कोर्स में हम आपको ये ज़रूर बता रहे होंगे कि आप अपना डिजिटल पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हो, तो वो वहाँ पर रहेगा जी। सर आपने कहा कि ये क्लाइंट की बॉडी का मैनिक्विन बना सकता है, तो सर ये हाँ मतलब मैनिक्विन बना सकता है मेजरमेंट से, तो सर ये मेजरमेंट्स मैन्युअली ऐड करना है या फिर स्कैन करके भी डिटेक्ट कर सकता है? बॉडी स्कैन करके आप डिटेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास स्कैनर का कॉस्ट बियर करना आपको पड़ेगा। कैसे करेंगे फिर? एक्चुअली मैन्युअली ऐड करना बहुत चीपर है और स्कैनर्स खरीदना बहुत महंगा। कर सकते हैं हम स्कैनर से, इसको तो ज़्यादा अच्छा 30 सेकंड में कर देगा। मैनुअली डालोगे 2-3 मिनट लगेंगे, तो आपको अगर 1.5 मिनट बचाना है और आप कुछ 3.5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, नो इश्यूज़, ठीक है। और उसमें भी छोटा सा इशू आएगा कि वो किड साइज़ का ही स्कैन कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल साइज़ का स्कैनर जो होगा फुल बॉडी साइज़ का, वो तकरीबन 45 लाख का पड़ रहा होगा। योर कॉल, थैंक यू। दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन। और आने वाले टाइम में इन डिवाइसेस की कीमत कम हो जाएगी जब हम ऑगमेंटेड रियलिटी से बात कर रहे होंगे। हमारे फ़ोन्स के कैमरा की जैसे क्वालिटी बढ़ती जा रही है, सून विल सी 360 डिग्री कैमराज। अभी हम एक्सपेरिमेंटल 360 करते हैं कि हमें फ़ोन घुमाना पड़ता है, बट टिपिकली इन सम टाइम वी विल बी गेटिंग न्यू अपग्रेड्स इन दैट मैनर। इट्स गोना टेक व्हाट 5-7 मोर ईयर्स, और वो 45 लाख की कॉस्ट वाली चीज़ें 10-10, 15-15 हज़ार में, 20 हज़ार में, 50 हज़ार में अवेलेबल होने लग जाएंगी। तब हम उस चीज़ पर वैसे वर्क कर पाएंगे। फॉर द टाइम बिंग, और मैनुअल में एक्यूरेसी आपकी अभी भी ज़्यादा आती है, बिकॉज क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको क्लाइंट की न्यूड मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी, विच इज़ रिस्कियर। आप किसी क्लाइंट को कह रहे हो कि आप वो कैमरा से फ़ोटो खींचनी है और आप न्यूड हो जाइए, तो वो बहुत रिस्कियर हो जाता है सिचुएशन में, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग जो हम मैनुअली मेजरमेंट लेके करेक्शन करके डाल सकते हैं, दैट्स मोर एफिशिएंट इन हियर। आई बिलीव मैंने उसके आगे और पीछे के 3 क्वेश्चन भी आंसर कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू। सर, जो इसमें ये क्लोथ्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, जो इनके ऊपर डिज़ाइंस होते हैं, वो भी हम इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं? प्रिंट डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयडरी, आपको पैटर्न मेकिंग तो हमने कवर किया। पैटर्न मेकिंग, पैटर्न नेस्टिंग, मिनी मार्कर, और उसके अलावा आपका प्रिंट डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयडरी, लेस फैब्रिक्स, जिपर, बटन से लेके जो भी एक्सेसरी, बैग्स, सब लेयर फैब्रिक्स, यानी कि आप 3D में भी अगर मॉर्फिंग करके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं जो आप स्टिच करके बनाते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू इट इन क्लो 3D। सो आपका प्रिंट डेवलप उसमें नहीं होगा, प्रिंट आप कोरल में या फोटोशॉप में ले सकते हो, या इवन यू कैन टेक इमेजेस और आप उस पर रियलिस्टिक टेक्सचर्स डाल सकते हो। जिस फैब्रिक का वो प्रिंट है ना, प्रिसाइजली उसी फैब्रिक में वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और रही बात की टेक्निकल डिटेल्स, हम फैब्रिक को जब टेस्ट करते हैं तो उसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि वेट, GSM,
सॉरी वेट इन जीएसएम हो गया, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेयरिंग बर्स्टिंग स्ट्रेंथ हो गई, और उसके अलावा आप उसको स्ट्रेच करते हो, कौन सी डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच मिल रहा है, ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन मॉडिफाई इन दैट। और हमें प्री इस्टेब्लिश्ड भी मिलते हैं, उसमें प्री सेट भी मिलते हैं डिफरेंट साइज़ के फैब्रिक्स की, बट अगर हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट किसी भी फैब्रिक की है तो मैनुअली भी उसमें डाल सकते हैं। बाई चांस नहीं है तो डिटेल्स ऑनलाइन फाइंड आउट करके भी आप उसमें डाल सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट द रियलिस्टिक इफेक्ट इन दैट कैटेगरी। उसका ड्रेप, उसका वेट, फैब्रिक का वॉक पे उसका इफेक्ट वैसा ही आएगा जैसा उसमें आता है। अनदर थिंग, हम उसमें लाइट सोर्स चेंज कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं फर को या ग्लिटर को या मेटेलिक थिंग्स को, वी कैन डू दैट। एक और चीज़ कर सकते हैं जो अभी बच्चों ने नहीं की है उन वीडियोज़ में, कि आप वहाँ पर ना विंड भी ब्लो कर सकते हैं, कि जब वो चल रहे हों तो कपड़े जो पहने हुए हैं उस पर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा हो, जिसकी वजह से उतना ही उड़ें जितना आप चाहते हो, कंट्रोल्ड एयर। मतलब ये ना कपड़े उड़ के चले जाएं, तो इसीलिए, है ना, तो कंट्रोल्ड एयर भी होता है ना। वो एडवर्टीजमेंट शूट करते हैं कि शूट किया और पूरे कपड़े उड़ के चले गए, आप देखते तो हो एड्स, लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल्ड एयर कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। लाइट कंट्रोल कर सकते हो, एयर, इवन ग्रेविटी कंट्रोल कर सकते हो। आपका मॉडल कैन फ्लाई लाइक एन एस्ट्रोनॉट इफ़ यू वांट टू गिव इट लिटिल ड्रामा। यू कैन ऐड योर ओन स्टेज देयर। आप अपना वहाँ पर वर्चुअल शोरूम क्रिएट कर सकते हो कि शोरूम आपका कैसा दिखना चाहिए, उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। हैंगर्स वहाँ ऐड कर सकते हो, क्लॉजेट बना सकते हो। इट्स लिटरली एवरीथिंग दैट यू कैन डू इन दैट। रैम्प वॉक भी, अच्छा, आप अपना कस्टमाइज रैम्प भी बना सकते हैं जिस पे आपका खुद का नेम्ड बैनर होगा, आपकी खुद की लाइट्स लगी हुई हैं, यू नो, LED लाइट्स में आपने नाम लिखे हुए अपने। यू कैन डू ऑल दैट। Yes, you have to buy this software. Yes, but you're lucky that वो 1 महीने का ट्रायल आपको फ्री देते हैं और आप अपनी 2-3 ईमेल IDs पे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी तक तो उनका प्रोविज़न है, बिफोर यू बाय यू कैन अर्न इट, एंड फिर जब पैसे कमा लो तो ख़रीद भी लेना। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए $25 ही है। सो टिपिकली एक स्टूडेंट के लिए आपको ये महंगा लगता है, बट अगर आप इस सॉफ्टवेयर की इंटर्नशिप चेक करेंगे वर्क फ्रॉम होम में, तो आपको US, यूरोप जैसे कंट्रीज़ में लिंक्डइन पे आपको ऐसी इंटर्नशिप मिल जाएगी, पार्ट टाइम वर्क आवर्स 4 आवर्स के लिए दे वांट यू, एंड फॉर द मंथ, एंड दे आर पेइंग व्हाट, $20, $15 पर आवर, और इसका सब्सक्रिप्शन है $25 पर मंथ। तो अगर ईमानदारी से करोगे और 2 महीने तक करा और उनके लिए इंटर्नशिप करो तो येस, यू कैन बाय दैट। बट आप उसके बिना भी काम कर सकते हो जब तक आप नई मेल IDs यूज़ कर सकते हो। अभी तो चल जाएगा, ठीक है। एनीवन एल्स? बाकी सबको सब पता है। तुमने जो पूछा, उसने जो पूछा, वो उनको पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने नहीं पूछा, ठीक है ना गाइज? चलो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए क्योंकि आपको सब पता है। अब तो हमने इस्टेब्लिश भी कर दिया फैक्ट कि आपको सब पता है, आप लोगों ने स्टैम्प भी लगा दिए, तो स्टिल नो क्वेश्चंस, कैन वी एंड इट हियर? नोबडी? ओके, थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्ट इट टू प्रीति मैम एंड वी कैन टेक इट फर्दर। थैंक यू मैम। The world of fashion is evolving, and today's knowledge may well shape the trends of tomorrow. Your words today not only inspired our budding designers, but also sparked a curiosity that will surely lead to fresh, innovative ideas here at our institute. Thank you for sharing your wisdom. I would like to extend a warm invitation to our principal, Mrs. Preeti Sarva ma'am, to share her motivating thoughts. थैंक यू दिव्या। सबसे पहले आप सभी का IPS के परिसर में पुनः हार्दिक स्वागत है, और रिखिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना एनलाइटनिंग और इतना न्यू इरा से भरपूर सेशन दिया जो आमूमन लोगों को पता नहीं है। पता था किसी को? नहीं था ना? तो IPS एकेडमी वही है जो ऐसी चीज़ें लाता है।
न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, वरना फैशन में होके ओल्ड फैशन्ड कहलाएंगे ना, कहलाएंगे ना। और फैशन स्टूडेंट हो या कोई सा भी स्टूडेंट हो, रहना फैशन में ही सब पसंद करते हैं, है ना। तो फिर नॉलेज भी नए फैशन की लानी होगी ना। यही देखते हुए हमने आज का सेशन रखा कि बच्चों को कम से कम नई टेक्नोलॉजी पता हो। अब बात आती है कि कोर्स जो सर ने बताया, बेसिकली इसके लिए आप सब देख रहे होंगे, जो आईपीएस के बच्चे हैं वो तो देख रहे होंगे कि लैब बन चुकी है। दिव्या का जो प्रश्न था उसका पुनः जवाब दे रही हूँ। लैब बन चुकी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अवेल करवा लिए गए हैं। आप हमारे पास ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिखिल सर ही पढ़ाएंगे आपको, कोई और नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, ठीक है। तो ऑनलाइन आप ये रहेगा कोर्स। ऑनलाइन का मतलब रिकॉर्डेड नहीं, वर्चुअल रहेगा, मतलब इंटरैक्टिव, ठीक है। और अब अगर आपको घर से करना है तो फिर आपको आपका लैपटॉप उस लेवल का अपग्रेड, उसके जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो सर ने बताया स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, लेकिन हार्डवेयर फिर वैसा है या नहीं आपके लैपटॉप में, अब आपको हम उसकी नॉर्म्स दे देंगे तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ करें तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। उसके लिए कोई एडिशनल कुछ भी नहीं खर्चा होगा, जो फीस है वही है बस, ठीक है। तो ये थी आज के इस कोर्स की लॉन्चिंग की डिटेल्स। अब अगर हम चुपचाप कुछ भी काम करें तो लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्लो 3D, क्या है क्लो 3D, और उससे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। यू नो, उसमें फिट भी, जैसे सर ने सारी चीज़ें बताई, अगर आपने स्किप किया हो तो मैं बता दूं, फिट भी चेक हो जाता है, सारे ड्रेप्स वगैरह सब चेक हो जाते हैं। जबकि आम तौर पर अभी आप स्केच कर रहे हैं, एक एक ड्रेप्स बताना मैनुअली कितना डिफ़िकल्ट होता है स्केचिंग करना, वहाँ वो चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं। जब पैटर्न मेकिंग हो रहा है, उसका साइजेस, सर ने नेस्टिंग कहा था, शायद टेक्निकली कुछ बच्चे जानते नहीं हैं, 4th ईयर शायद जानता है बस नेस्टिंग क्या होती है। मतलब साइजेस डेवलप करना। बाज़ार में आप जाते हैं आपके साइज़ का ले आते हैं, मैं जाती हूँ मेरे साइज़ का ले आती हूँ, तो वो कैसे होता है, साइजेस डेवलप करना। और फिर कटिंग के सारे मतलब मार्कर्स बनाना, सारे साइजेस की कटिंग करना, और व्हाट नॉट, सब कुछ है उसमें। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। और सभी को, हमारे डॉक्टर DC राठी सर को धन्यवाद, उन्होंने अपने बच्चे भेजे और ख़ुद भी आए, बहुत ही उत्साह के साथ हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट भीरूलाल पाटीदार कॉलेज के प्रोफेसर्स आए, डॉक्टर्स आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर, DAV से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। कहाँ हैं DAV के स्टूडेंट्स? देखो कितने सारे स्टूडेंट्स। आप फैशन के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, वेरी नाइस। तो आपके तो बहुत काम का होगा शायद ये सेशन, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे भीरूलाल पाटीदार कॉलेज, राव कॉलेज, सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। IPS के बच्चों का भी लास्ट में धन्यवाद। और हमारी ई-लर्निंग की टीम और हमारी IPS की IFT की टीम, सभी का बहुत धन्यवाद। और जिस किसी को मैंने छोड़ दिया हो गलती से, उसका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. On behalf of IPS Academy and everyone present here today, we extend our sincere thanks for gracing us and with your presence and making this workshop an unforgettable experience. I would like to call Mrs. Preeti Sarva ma'am to give memento to Mr. Rikhil Nagpal sir. एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आप मॉडल शूट करते हैं ना, तो कैमरामैन जितने अच्छा वेट करवाते हैं ना, वो भी नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ हम हमारा प्रोग्राम का समापन करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर किसी को भी कुछ और बोलना हो, फीडबैक देना हो, और हमारे सम्माननीय राठी सर और कोई भी हमारे रिनोन्ड टीचर्स जो महू से आए हैं, किसी को भी कुछ भी बोलना हो तो स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, फैशन के क्षेत्र में जितना हम अपडेट रहेंगे उतना हम ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सर ने सारी चीज़ें क्लियर की है।
जब 3D फैशन डिज़ाइन का जब मैडम ने मुझे बताया तो मैंने नेट पे सर्च किया। हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई मुझे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके जो वर्ड इस प्रकार के कि हम उनको समझ नहीं पाते। पर फिर भी जितना मैंने जाना कि सर ने जो कुछ बताया कि हम ड्रेस को जब डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हम सैंपल बनाते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे खर्च एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम इस नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम उन सारे कास्ट कटिंग जिसको हम बोलते हैं, मैं चूँकि कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो कास्ट कटिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो अगर आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यदि अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट की कास्ट को कम कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो इस प्रकार के कोर्सेज में विशेषकर वे विद्यार्थी जो FT से जुड़े हुए हैं वो तो इस कोर्स को करे ही करे, पर इसके साथ साथ वे विद्यार्थी जो क्रिएटिव सोचते हैं, जो हर दिन कुछ नया सोचने के में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार के कोर्सेज बहुत उपयोगी हैं। मैं समझता हूँ आपको इस प्रकार के कोर्सेज जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir and ma'am. Thank you all your students present here. Have a great day. Bye-bye.